Hello students, how are you all? I am Pankaj Mishra, your physics teacher, here again with a new video on physics class. Students, in my last video I have already started with this chapter, that is force and pressure. In my previous video I have explained you about the definition of force, its unit, its effect, and I have told you about moment of force, that is torque. So basically in my last video I have explained you torque, which is also known as turning effect of force. That is when we apply force on a body, if it turns, अगर वो क्या कर जाती है, turn करती है, so it turns just because of moment of force, and that force is acting on that particular body makes the object to rotate, and it get rotated just because of the pivoted point or the hinge. Like in case of door, आपने देखा होगा जब डोर को हम लोग खोलते हैं तो व्हाट वी डू, वी अप्लाई फोर्स, है ना, आइदर टू पुल और टू पुश, एंड इट इज बीइंग पाइवोटेड बाय द हिंजेस. ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द हैंडल, सो द डिस्टेंस बिटवीन द हैंडल एंड द हिंज विल बी मोर. सो इन दैट केस the turning effect will be more. The turning effect of force will be more, moment of force will be more, or we can say torque will be maximum. So maximum torque कब लगेगा, जब हम लोग हैंडल से करेंगे. But if we reduce the distance, like if we apply the force very near to that point which is very near to the hinges, then in that case the turning effect will be less. So turning effect of force depends on two factors, that is the magnitude of force and number two, the perpendicular distance from the axis of the rotation. That is, if the perpendicular distance from the axis of rotation is less, then torque will be less, and if the distance is more from the hinges, then torque will be maximum. So this is the explanation part. ठीक है, और if we'll talk about effect of force, तो मैंने आप लोगों को effect of force में बताया था, when we apply force on a body, then what will happen, body can be deformed, like shape and size will be changed. Number two, change in speed can be there, speed में भी change हो जाता है. Number third, अगर हम लोग कह दें तो change in the position. So these are the basic difference. Like बच्चे कभी कभी turning effect of force, that is जो हम लोग टॉर्क पढ़ते हैं, और इफेक्ट ऑफ फोर्स में भी वही कर देते हैं, दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, बट दिस इज द डिफरेंस. सो इन टुडेज वीडियो विल बी स्टार्टिंग अबाउट प्रेशर. हम लोगों ने फोर्स पढ़ लिया, नाउ विल टॉक अबाउट प्रेशर. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस व्हाट इज प्रेशर. तो अगर हम लोग डेफिनेशन को मैथमेटिकली पढ़ें तो प्रेशर इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो थ्रस्ट अपॉन एरिया, या समटाइम्स वी कॉल्ड फोर्स अपॉन एरिया. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया. सो प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एंड दिस थ्रस्ट is the normal force acting on a unit area. अगर फोर्स लगे, और कैसे लगे, नॉर्मली 90 डिग्री लगे, तो दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट. अब इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अगर लिख लें थ्रस्ट अपॉन एरिया मतलब फोर्स ही है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. So we can say that SI unit is Newton per meter square and CGS unit is Dime per centimeter square. तो ये आपकी यूनिट हो गई प्रेशर की. ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो हमारा यूनिट भी निकल गई और प्रेशर की डेफिनेशन से भी रिलेटेड हम लोगों ने बता दिया. नाउ विल टॉक अबाउट, लाइक एक चीज हम लोग ये बोलते हैं स्केलर है, वेक्टर है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली. ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रेशर के बारे में. नाउ अगर हम बात करें व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में. तो प्रेशर के अगर फैक्टर्स की बात की जाए तो प्रेशर का फैक्टर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ, एज फ्रॉम द फॉर्मूला वी कैन से दैट pressure is directly proportional to force and pressure is inversely proportional to area of cross section.
इसी पे इनके हम लोग एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे या कॉन्सिक्वेंसेज भी कह सकते हैं। तो अगर हम इनको कंबाइन करें तो P प्रोपोर्शनल F बाय A आएगा, तो P इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कटेगा तो K टाइम्स ऑफ F बाय A। इफ K इक्वल टू 1 देन P इक्वल टू F बाय A। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो if the force applied, that is the magnitude of force applied is more, then in that case what will happen? The magnitude of the pressure will be more. If force is less, then pressure will be less, and it is inversely proportional to area of cross section. Like area of cross section की बात करें हम यहाँ पे, तो area of cross section अगर increase करेगा, in that case pressure will be less, and area of cross section अगर decrease करेगा, then in that case pressure will be more. So these are the two factors, that is the magnitude of the force applied and the area of cross section. So it depends on these two factors. Now we'll talk about the consequences. So we can say that applications की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम लोगों ने देखा होगा जैसे हम बोर्ड पिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो what we do, there are two ends in that board pin. वन इज वेरी पॉइंटेड एंड, अगर जैसे बोर्ड पिन की बात करें, एक एंड जो होता है वो पॉइंटेड एंड होता है और एक ब्लंट होता है। तो व्हाट वी डू, हम लोग जो उस पे हैमरिंग करते हैं, तो जो पॉइंटेड एंड होता है वी कीप दैट ऑन दैट पोर्शन विच हैज टू बी इंसर्टेड इनसाइड दैट वुडन प्लैंक और जो भी चीज है। तो क्या होता है कि इस टाइप से अगर हम देखें तो ऐसे पिन होती है, तो ये वाला जो पॉइंटेड एंड है, ठीक है, और ये ब्लंट होता है आपका। तो यहां से हम हैमरिंग करते हैं, क्या करते हैं, हैमरिंग। तो जब हैमरिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका एरिया ऑफ करेक्शन क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज कंपेयर टू किसके, ब्लंट पॉइंटेड वाले के क्या होता है, ज्यादा होता है, तो प्रेशर कम अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम पॉइंटेड वाले साइड में अगर देखें, उसको हम लगाते हैं नीचे की तरफ और जब उसको हैमरिंग करते हैं तो व्हाट विल हैपन, वहां पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, है ना। तो इन दैट केस पॉइंटेड एंड है तो वो इट विल गेट इजिली इंसर्टेड इन इट। नंबर 2 अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा है जो हैवी ट्रक्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा लोड अगर होता है, तो इन दैट केस क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा यूजुअली ट्रक्स हैव ओनली 4 टायर्स, बट इन दैट केस 6, 8, 10 इतने टायर्स भी किए जाते हैं, सो दैट अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर कम लगेगा और स्टेबिलिटी भी उस ट्रक की बनी रहेगी। थर्ड नंबर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट है, लाइक आपका सीजर हो गया, ब्लेड हो गया, नाइफ हो गया, तो इनमें भी एक ब्लंट साइड होता है और एक आपका शार्प एंड होता है। तो शार्प एंड की वजह से भी पॉइंटेड, जैसे हम लोगों ने नील में बोला था, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल ओनली द ऑब्जेक्ट कैन बी इजिली कट ऑफ। एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें तो स्कायर्स की बात कर लें, जो आई स्कायर्स होते हैं उनमें जो जिसका इस्तेमाल करते हैं दैट इंस्ट्रूमेंट, जो भी दैट पर्टिकुलर थिंग, उसमें भी क्या होता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, बेसिकली ज्यादा होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, तो प्रेशर कम लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दे कैन इजिली यूज दैट स्कायर्स ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशंस। एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें तो हम लोग देखते हैं कि जो कैमल होता है, ठीक है, उसके फुट कैसे होते हैं, बहुत वाइडन होते हैं, ठीक है, ब्रॉड फुट होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स। हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि हॉर्स ले लें या फिर हम कोई और ले लें, मतलब अदर एनिमल्स जिनको हम लोग डेजर्ट में ले जा सकें और वहां पे वो इजीली चल पाए। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रॉडन फुट कैमल कैन इजिली वॉक इन डेजर्ट। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑन विच दिस pressure can be explained. Now it will talk about the laws. अगर हम लोग अभी बात करेंगे, later on I will be explaining you the laws also, like pressure in case of liquid. तो थोड़ा सा चीज मैं आज आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि बेसिकली अगर हम लोग प्रेशर की बात करें इन केस ऑफ लिक्विड, तो आपको पता है लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, और इफ liquid is being inserted in a vessel then it applies pressure uniformly in all possible direction, ठीक है। तो वहां पे पास्कल लॉ एक यूज होगा आपका आगे चल करके, which basically states that कि if a liquid is kept inside a vessel then the pressure inside that vessel will be uniformly distributed in all possible direction, ठीक है।
और आगे चल करके आप लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो वो प्रेशर होगा वो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, P = H ρ g। जो पहली चीज आपकी होगी डेप्थ, हाइट की बात कर लें, दूसरी होगी डेंसिटी होगी, और लास्ट वाली जो होगी वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ, पहला वाला होगा, और डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा कि अगर 2 चीजों को हम लोग सेम हाइट पे रख दें तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे भी प्रेशर डिपेंड करेगा, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दीज आर द फैक्टर ऑन विच द प्रेशर विल बी डिपेंड। इसके बाद हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी बात इस चैप्टर में करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फियर। ठीक है, और अगर हम यूनिट्स की बात करें तो हम लोग पास्कल भी इसकी यूनिट कहते हैं। ठीक है, प्रेशर के लिए हम लोग पास्कल भी यूज करते हैं, एंड दिस 1 पास्कल इज इक्वल टू 10⁵ बार। ठीक है, एटमॉस्फेरिक यूनिट भी होती है। So student, this was all for today. I'll finish my lecture here only. So just go through my video. अच्छे से देखिएगा, पिछला वीडियो भी देखिएगा, so that you can differentiate among torque and force. बच्चे कभी कभी सेम चीजें नहीं को कह देते हैं। So please be ready with your doubts. आज आप लोगों की लाइव क्लास भी है फिजिक्स की। So whatever doubts you are having regarding this chapter or the chapter that I have already explained you, just be ready with your question. I will be answering you. Thank you for today.